Good afternoon, students. In the last lecture, we have learned about an agriculture sector. Okay, then we have learned about the problems faced by an agriculture sector. Then we have learned about the measures undertaken by an agriculture sector. Okay, then we have also revised industry. Okay, and we have learned that industrial sector is one of an developed sector of a Maharashtra, advanced, you can also say advanced sector. Okay, the share of Maharashtra in industrial sector is more as compared to other states. Then we have learned about foreign direct investment. Okay, foreign direct investment I have taught you all in the class also, and it is an example of liberalization if a person is free to take an economic decision regarding economic decision in terms of investment, in terms of expansion, whatever may be the economic decision he can take. So if foreign investors decide to invest in countries like India, and in that also especially Maharashtra, so whenever they are investing, it's known as foreign direct investment. Then we have learned in today's lecture we'll be learning about the problems. What are the problems faced by an industrial sector, and what measure government should take to improve the industry sector, as the industry sector of Maharashtra is good, but still there are few loopholes what will say which should be improved for better growth and development of industry sector. So let us see the problems. What are the problems because of which industrial sector somewhere it's lacking? The first problem is delay in government procedure. Whenever the country expands or merge, जब भी country expand होती है, merge होती है, नई establish होती है, then there are certain procedures to be followed. Okay, the investors, the producer have to take an approval of the government. There are lots of policies which they have to follow. There are also rules and regulations. So ये सब में बहुत टाइम चला जाता है, तो ये भी एक रीज़न है. द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट. You all can see in foreign countries the various opportunities are provided to young individuals so that they can develop a skill whatever work they are doing in terms of industry. Okay, लेकिन हमारे इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिससे स्किल डेवलप हो सके. स्किल डेवलप होना मतलब कि जो भी आप काम करो उसमें उस काम के लिए जो स्किल चाहिए वो आप में डेवलप होना चाहिए. The lack of updated technology, you'll see if the technology is good, if the technology is advanced, there is a possibility of two positive factors. The first is the cost of production will be less, and second the capacity of production can also be increased. Okay, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, एडवांस है, तो खर्चा भी कम होगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जो कि बहुत अच्छा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए. The lack of infrastructural facilities. There are many states in Maharashtra still lack an infrastructure facility in terms of road, railway, dam. Okay, then this is also reason because of which industrial sector is not able to grow. Okay, it's not like that कि industrial sector grow नहीं है, काफ़ी एडवांस है, लेकिन और भी अच्छा कर सकती है. तो ये सब छोटे छोटे रीजन्स है जिसकी वजह से और लैक करती है. देन फिफ्थ इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ न्यू एंटरप्रेनर्स. जो एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो बिज़नेस कंडक्ट करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, ओनर जो होते हैं, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है. फ्रॉम देयर स्कूलिंग ओनली दे आर फ्रेम लाइक दे हैव टू डू सम वर्क. ओके, बट दे आर नॉट मोटिवेटेड दैट यू शुड स्टार्ट योर ओन. ये हमारे एक इंडियन एजुकेशन में थोड़ा लूप होल्स है. यू कैन से कि यहाँ पे एंटरप्रेनर नहीं तैयार किए जाते, जो कि गवर्नमेंट ऑलवेज वॉन्ट्स दैट ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेनर हो, किसी के अंडर काम करने से. चाहे इफ यू आर सेटिंग अप योर ओन, एंड दैट विल बी मोर बेनिफिट फॉर द पर्सन ऑल्सो एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो. ओके, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं है डेवलपमेंट के इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड. रीजनल इम्बैलेंस है. रीजनल इम्बैलेंस मीन्स सम स्टेट्स इज some area, some city of Maharashtra is developed whereas some city is not developed. तो रीजनल इम्बैलेंस होता है. कहीं पे आप देखोगे पुणे वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर इंडस्ट्रीज़, लेकिन कहीं कहीं नंदुरबार हो गया, ये सब में जल्दी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो रीजनल इम्बैलेंस है. ओके, what are the measures taken by the government for industrial development? What are the measures? Single window cell was initiated to provide all clearances to the existing and prospective investors. एक ही जगह पे जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी कुछ जानकारी चाहिए, उनके जो भी कुछ प्रोसीजर है, वहीं पे सारे कुछ हो जाएंगे. आपको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं. उसी को बोलते हैं सिंगल विंडो सेल. आई हैव टॉट यू ऑल इन द क्लासरूम इन डिटेल.
देन महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेल दैट इज़ कॉल्ड मैत्री वॉज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वेर ए सिंगल विंडो सेल इज़ इन ऑफलाइन, ऑपरेट्स ऑफलाइन। देन अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो गवर्नमेंट चाहती है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना फॉरेन करेंसी आएगी, उतना ही देश का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको अवार्ड देती है, क्यों देती है? ताकि उनको मोटिवेट करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। स्पेस रेंट सब्सिडीज़ अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बेसिकली प्रोवाइड करिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इन मेनी रीजन्स एंड वन ऑफ इन बिगेस्ट रीजन इज लैक ऑफ कैपिटल आर फोर्स टू क्लोज डाउन वाइंड ऑफ द इंडस्ट्री। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको सब्सिडी मतलब एक तरीके का बेनिफिट बोलो, इंसेंटिव्स बोलो, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उनको स्पेस रेंट मतलब कम आपको पे करना पड़ेगा रेंट, ताकि उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सके, विच इज़ एन वेरी गुड सोर्स ऑफ एन इनकम फॉर द गवर्नमेंट। टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है चाहे स्मॉल स्केल हो पार्टिसिपेट करो, और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट होटल से एक्सपोर्ट कर सकोगे, एक्सपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, ओके, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। देन क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हमने पढ़ा था SEZ एंड AEZ इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए SEZ होता है, वेर एज एग्रीकल्चर के लिए AEZ, ओके। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करता है। ऑल द इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड इन दिस जोन, ऑल द वॉट एवर इज़ द प्रोसीजर, जो भी कुछ उनको है वो वहाँ पे सारे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है जिनसे वो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड डिसीजन क्विक ले सके। Then Maharashtra State Industrial Cluster Development Program MSICDP is being implemented all over the state to develop small scale and small, medium and micro enterprises. छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है, ओके। सो आई होप वी हैव क्लियर्ड अबाउट इन इंडस्ट्री सेक्टर। नाउ लेट अस सी द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एट प्रेजेंट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, एंड सबसे ज़्यादा जो GDP आता है वो हमारे सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है प्रेजेंटली। अगर तीनों सेक्टर को कंपेयर करें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, तो सर्विस सेक्टर इज़ इन टॉप पोजीशन, ओके। सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, आता क्या है इंश्योरेंस मतलब जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, टूरिज़्म हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विस टू बिजनेस एज वेल एज टू द फाइनल कंज्यूमर। सर्विस सेक्टर में जो सर्विस का प्रोविजन होता है वो बिजनेस को भी प्रोवाइड किया जाता है और फाइनल कंज्यूमर को भी प्रोवाइड किया जाता है। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, ये सेक्टर एक्सपांड हो रहा है, तो जब भी एक्सपांड होता है तो आपको लोगों के लिए काम होता है, तो जब भी होता है देन देयर इज़ एन चांस एंड स्कोप ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, ओके। अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट्स सेम GDP बट स्टेट का अलग अलग, इसलिए GSDP बोला जाता है, हैज़ बिन द हाइएस्ट कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, इट वॉज 54.5। आप देखोगे कि 50% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो सर्विस सेक्टर से आता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अ कोर एरिया ऑफ इन डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड फिनटेक, ये सारे कंपनीज़ है जो सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है एंड बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करती है। ITES है, स्टार्टअप है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह, डिफेंस हो गया, टूरिज्म एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। Government has also tried to expand the service sector by various activities in Tier 2 cities. Government Tier 2 cities मतलब जहाँ पे population कम होती है वहाँ पे भी गवर्नमेंट what will say सर्विस सेक्टर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। Now let us see the core area. core area मतलब इम्पॉर्टेंट एरिया जो है सर्विस सेक्टर का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है कोई भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, टॉट यू ऑल इन द क्लास। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, हॉस्पिटल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए को बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मतलब रोड है तब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। जो हैवी गुड्स है उनको रेल के ज़रिए पहुंचा सकते हो। देन इलेक्ट्रिसिटी है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं बहुत बेसिक ज़रूरी है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट करना है तो।
Infrastructure is a basic requirement for economic development. A sound infrastructural foundation is key to overall socio-economic development of an state. मतलब अगर स्टेट का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, साउंड मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. दिस एक्ट एज ए मैग्नेट. जितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, लोग उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे into the state for attracting additional investment and thus provides a competitive edge to it over the states. And जितना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, हम दूसरे स्टेट्स के साथ भी उतने अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं. Adequate infrastructure facilities are an absolute necessary for rapid achievement for sustainable growth. Sufficient infrastructure, adequate मतलब जितना ज़रूरी है, अगर उतना है तो हम हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं, वो भी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल मतलब ऐसे नहीं कि आज ग्रोथ हुआ कल कम हो गया, हमको उसको होल्ड करना है, आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है. सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गिवन. इकोनॉमिक एंड सोशल. इकोनॉमिक में एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंड सोशल में हेल्थ है, एजुकेशन है. ओके, सो दिस विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अबाउट द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर. And one more thing, many students are asking, ma'am, exam होगा या नहीं? See, as per the government circular, offline exam is not possible. And regarding online exam, now discussions are going on. We'll be very soon providing you all information that whether we'll be conducting online exam or we'll be promoting. Now let's see. At present, we cannot say anything. Okay, but you'll come to know within 10 days. Okay, whatever is the decision. If you all want to learn, you all can learn your class 12. Many students are asking कि मैम हमको 11 पढ़ना है कि 12 पढ़ना है. आप 12 भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You all can do. Okay, so thank you for today's lecture.